Hey guys, I am Srishti Datta and today I am gonna tell you how I went from this to this. So without wasting a second, let's get going. Okay, so the question is why I got acne. Actually what happened was we were in lockdown and I had nothing new to do. So I decided to put on some makeup on my face, which is good, but we need to clean our face after the makeup, the foundation, the concealer we use. And what I did was I only used the makeup wipe to remove my makeup, which was a very big mistake. We must double cleanse it afterward. So eventually my skin got clogged and I started having comedones all over my face. What comedones actually are, they are tiny white bumps on your face which you see sometimes on your this area, chin area, and sometimes on your nose and cheeks. At first they were like 3 or 4, so I thought they were simple pimples. Simply they are pimples, but I was wrong. So how I treated my acne? At first I thought my face will recover on its own, but I was wrong. After a month it got even worse because I kept picking and poking on my face, which was a very big mistake. I got socially anxious as well, so my mom noticed it and recommended me to go to a dermatologist. So I went to the best dermatologist in our locality, and in the first visit he knew that I was having moderate to severe acne. He prescribed me some good medicines, and along with that he told me not to do some certain things. I was restricted to do some certain things. The things were, first, I was not allowed to eat any dairy products or sugar. Second, I was not allowed to pick or poke on my face or even touch my face without washing my hands. And third was, I was not allowed to go outside on in a sunny day. Like, I was not allowed to have direct sunlight on my face. That would be very harmful for my skin, as I was having very sensitive skin like that back then. So the medicines my doctor prescribed were L-Acne Foaming Face Wash, Aquasoft FC Cream, Tretinoil Gel 0.025%, Erythro-N Gel, and the last one was Acne UV SPF 30, which was the sunscreen. These medicines work like magic to me, and as you guys can see, I have no more acne or comedones on my face. It's fully clean and I am so happy. हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि दत्ता, और आज का जो वीडियो है वो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत जन का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में वीडियो बनाने का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा फेस में जो इतना एक्ने था, जो कि आप देख सकते हो इधर कि मेरा फेस का क्या एक्ने होके रखा हुआ है, तो इस एक्ने से मेरा फेस इतना क्लियर एंड ग्लोइंग एंड ग्लास स्किन मुझे कैसे मिला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो स्किन केयर का प्रोडक्ट्स है वो है L-Acne Foaming Face Wash, Kojic Acid, Aquasoft FC Moisturizer, Acne UV Sunscreen and Tretinoil Gel 0.05% one। तो इन सब प्रोडक्ट्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, चलिए देखते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो, इनकेस अगर मेरे फेस में मेकअप है तो फिर मुझे अपना वाइप्स यूज़ करना है। अभी मेरे फेस में कोई मेकअप नहीं है, लेकिन आई स्टिल हैव लिपस्टिक एंड आईब्रो में मेकअप है, तो फिर उसको मुझे वाइप आउट करना है। तो अभी मेरे फेस में कोई मेकअप नहीं है, वो आप देख सकते हो, इट्स फुल्ली क्लीन। यू कैन सी इट। हाँ, मैंने अपने फेस से पूरा मेकअप एकदम कम्प्लीटली रिमूव कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप है फेस वॉश, जिसके लिए मैंने आपको फेस को वेट कर लिया है। एंड नाउ आई विल अप्लाई 2 स्कूप। ये फोमिंग फेस वॉश है, सो फोम आ रहा है, और इसको देन जेंटली मसाज करना है ऑन योर फेस। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा आईज के पास नहीं जा रहा है। मैं अपना चिन एरिया भी बहुत ज़्यादा क्लीन करती हूँ फेस वॉश से, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे मेरा चिन में भी बहुत ज़्यादा एक्ने निकल गया था।
बहुत लोग ये एरिया को भूल जाते हैं फेस वॉश करते टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि हम लोग हेयर में ऑयल देते हैं, तो फिर ऑयल से हम लोग का इस सब एरिया में हम लोग का स्कैल्प का जो एरिया होता है ये इधर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो इधर भी पिंपल आना या एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ये वाला एरिया अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करूँ। अब टाइम है इसको वॉश करने का। तो मेरा फेस वॉश हो चुका है और अब वाइप कर लेना है। मेरा फेस वॉश हो चुका है एंड आई मेड श्योर कि मेरा फेस कम्प्लीटली ड्राई है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कोजिक एसिड। ऐसे करके जस्ट अ लिटिल बिट एंड ऐसे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको अपने अपर चिन में या नोज़ के पास या आइज़ के पास कांटेक्ट में ना रहूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और मेरे स्किन को बर्न कर सकता है। तो फिर और ये सब बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट्स है, तो फिर मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि वो उस एरिया में नहीं। अपना होल ओवर फेस में इसको अप्लाई कर लेती हूँ। डन। नेक्स्ट है एक्वासॉफ्ट एफटी मॉइस्चराइजर। सो मैं इसको थिन अमाउंट लेती हूँ और इसको मैं पूरा होल ओवर अपने फेस में अप्लाई करती हूँ। कोई भी एसिड या प्रोडक्ट के बाद मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी एसिड होता है वो हम लोग की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और विदाउट मॉइस्चराइज़र हम लोग का स्किन बहुत ही ज़्यादा इन्हें डेंजर में चला जाता है, क्योंकि इतना ड्राई हो जाता है कि वो पील ऑफ होने लगता है एंड इट विल बी वेरी पेनफुल। तो हमेशा कोई भी एसिड के बाद मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डन। मेरे मॉर्निंग रूटीन का ये लास्ट स्टेप, एक्ने यूवी सनस्क्रीन। मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ऑयल फ्री है और ये पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन से बना हुआ है। एंड इसको अपने होल फेस में अप्लाई करती हूँ। किसी के फेस में एक्ने है और वो विदाउट सनस्क्रीन अगर बाहर जाता है इन डायरेक्ट सनलाइट, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, क्योंकि ये एकदम ग्रीसी फीलिंग नहीं होता है, सिलिकॉन बेस्ड है, तो पूरा स्किन में अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इसी के साथ साथ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीटेड। अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज नाइट केयर रूटीन। सो नाइट केयर का मेरा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश करना। सो मेरा फेस वॉश हो चुका है और अभी मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरा फेस कम्प्लीटली ड्राई हो। तो फिर मेरा फेस अभी कम्प्लीटली ड्राई है और अभी मैं अप्लाई करूँगी रेटिनॉल जेल। इसको मैं मेक श्योर करती हूँ कि इतना सा लाइक कैसे समझाऊँ मैं, लाइक पी होता है, पी एक मटर के दाने जितना, इसको उतना रखना है और इसी को इतना ही इनफ होता है हम लोग के होल फेस के लिए। और इसको भी मेक श्योर करना है कि ये एरिया और आईज का एरिया में ना लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, कर देता है स्किन को। तो अभी मैं इसको आराम से अपने होल ओवर फेस में लगा दूंगी, एक्सेप्ट नोज, अपर लिप्स एंड आईज। नोज का ब्रिज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस एरिया नोस्ट्रिल का पास नहीं। डन विद द रेटिनॉल। मेरे नाइट केयर रूटीन का जो लास्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। सो इसको मैं लेती हूँ दिस अमाउंट एंड इसको मैं अपने होल ओवर फेस में अप्लाई कर लेती हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से पहले उसमें 15 मिनट्स का गैप देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने रेटिनॉल अभी लगाया है तो मैं 15 मिनट्स बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। तो ऐसे ही सारा चीज़ जैसे कि मैंने सुबह का ये मैं रूटीन में बताया कि हम लोग को सनस्क्रीन यूज़ करना है
एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करना। तो हर एक प्रोडक्ट्स के बीच में उन लोगों को 15 मिनट्स का मैं गैप देती हूँ ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए मेरे स्किन में और उसको कम्प्लीटली यूज़। मॉइस्चराइज़र फुल्ली अप्लाइड है और अभी टाइम है सोने जाने का। अगर आपके फेस में भी एक्ने है या आप किसी चाहने वाले के फेस में एक्ने है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रोफेशनल डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि आपका भी स्किन बेटर हो सके। साथ ही साथ मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन अकेले कुछ काम नहीं करता। डाइट इज़ अ वेरी बिग थिंग, उसको आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरा 1 मंथ में मेरा रिकवर हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट मेंटेन की थी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई शुगर प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ। तो डाइट भी इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू नो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। जिन लोगों को मेरा वीडियो नीड है तो फिर आप उन लोगों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।